Welcome to. So I hope you are searching for fee remission, how to get fee remission, and here we will discuss full detail about the fee remission. A to Z is explained, and I have taken the example of NIT JSR fee remission procedure. Okay, so basically all NITs and IITs have the same procedure. Not to be worried. Okay, so first of all, congratulations for getting admission in IIT or NIT. So without any delay, let's start the video. So the first question, who get free remission? फ्री remission किन्हें मिलता है? ठीक है, तो फ्री remission बेसिकली हमें IITs और NITs में मिलती है. ठीक है, सो वैसे बच्चे जिनका फैमिली इनकम, नॉट पेरेंट्स, नॉट योर इनकम बट योर फैमिलीज इनकम is below 5 lakh. So there are two categories below 5 lakh. First is below 1 lakh and another is between 1 to 5 lakh. Okay. So whose family income is below 1 lakh, that students get full remission in tuition fee only. So जो हमें रेमिशन मिलता है, फी रेमिशन, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी पे मिलता है. याद रखिएगा, नॉट इन मेस फी और हॉस्टल फी. वो आपको लगेंगे, आपका ट्यूशन फी में सिर्फ रेमिशन मिलता है. तो यदि आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, तो आपको मिलेगा फुल रेमिशन. मीन्स कि जो 62,000 के अराउंड ट्यूशन फी होता है वो पूरा का पूरा आपको माफ हो जाएगा. बात करते हैं इन बच्चों की जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में होता है, उन्हें 2/3 रेमिशन मिलता है. किस पे? ट्यूशन फी पे. यानी 2/3 रेमिशन मिलता है 62,000 पे. सो अराउंड 40,000 का आपको रेमिशन मिलता है. सो दिस इज अ बिग अमाउंट फॉर अ फैमिली whose income is below 1 lakh or between 1 to 5 lakh. So how to get this free remission? Okay, so note one thing, it doesn't matter that you are general or OBC. तुम जनरल हो, ओबीसी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, फ्री रेमिशन तुम्हें मिलेगा यदि तुम्हारा फैमिली इनकम 5 लाख से कम है. यदि SC ST PWD कैंडिडेट हो तो उस केस में आपको ऑलरेडी रेमिटेड फी मिलता है, मतलब 62,000 आपको ऑलरेडी माफ हो जाता है. आपको IC वगैरह कुछ देने का जरूरत नहीं है. ठीक है, मतलब इनकम आपका कुछ भी फैमिली का डजंट मैटर. सो व्हाट यू हैव टू डू टू गेट फ्री रेमिशन? फ्री रेमिशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई हैव टू डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाट इट्स डिमांडिंग, व्हाट इट्स रिटेन, which certificates are demanding by the application form or by the institutes. So let's take the example of fee remission procedure of NIT Jamshedpur. So see, okay, this is the application form of fee remission for the academic session 2021 और ये चेंज नहीं होता है. सो नो नीड टू बी वरी. ओके, 2021 और आप 2021 22 हो या फिर 2022 या 23, मतलब ये वीडियो आप जब भी देखें दैट डजंट मैटर. ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म यही रहता है ना. इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि कौन क्या 1 लाख से नीचे. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस एंड ऑल. ओके, सो see what you have to do, and also institute gives the date by which you have to submit this. Not this date, but when you will get notification, institute will provide you a new date. Okay, so name of the applicant. Okay, so you have to fill like my name is Ravi Mandal. Okay, institute ID number. Okay, so if you don't know institute ID number, leave it. Category is, my category is OBC. So as you can see, only OBC and
general category students have to submit this fee remission form, and SC, ST or PWD candidate already get remission. So you have to provide email ID. You can provide your personal email ID, or if you got your institute ID, you can provide. So I will not provide my email ID. Otherwise, you all will mail me. So now you have to put your Aadhaar number. You know your Aadhaar number and mobile number. I will not put my mobile number. Otherwise, you will disturb me by calling. And now the seventh. Okay, so ये important है. ये भैया important है ना? क्या है? आपका एनुअल इनकम ऑफ फैमिली का एनुअल इनकम चाहिए, ठीक है? तो या तो आप फैमिली का एनुअल इनकम दीजिए, या तो अपने इंडिविजुअल पेरेंट्स का दीजिए। देखिए यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब यदि आप फैमिली इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपको फादर और मदर दोनों का अलग से बना के देना पड़ेगा, ठीक है? ओके, और ये सीओ का हो, एसडीओ, तहसीलदार, किसी भी लेवल का बन सकता है। सो इनकम सर्टिफिकेट पे बात करते हैं, ठीक है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इन एनआईटी जमशेदपुर। अब देखिए होता ये है ना कि आई एम फ्रॉम झारखंड, सो झारखंड का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये यूपी और अदर स्टेट्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, मेनली झारखंड में ये प्रॉब्लम आता है। एक्चुअली झारखंड में जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, उसमें फैमिली वर्ड नहीं होता है। यदि आप बनाए होंगे तो आप देखेंगे कि उसमें फैमिली वर्ड नहीं होता है, ठीक है? सो आप जो इनकम सर्टिफिकेट जमा कर रहे होंगे वो आपका फैमिली का नहीं होगा, या तो आपका होगा यदि आपने अपने नाम से बनाया है, और पापा का नाम से बनाया है तो पापा का होगा। लेकिन कॉलेज को चाहिए फैमिली इनकम या फिर आपके मम्मी पापा का दोनों का इनकम। तो मुद्दा ये आता है कि जब हम झारखंड में मदर और फादर का दोनों बनाते हैं ना, तो 70 से नीचे 17,000 के नीचे तो बनता ही नहीं है। अब मदर फादर का दोनों का यदि हम बनाने जाए तो 70,000 1,40,000, यानी हमको 2/3 रेमिशन मिलेगा, फुल रेमिशन मिलेगा ही नहीं, है ना? सो फुल रेमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनेगा? सो देखते हैं, वीडियो में आगे बने रहिए। ये चीज देखिए, यहाँ पे आपको नोटिस दिया गया था, मतलब हम लोग को दिया गया था, ठीक है? सो ये नोटिस आप लोग के लिए भी एप्लीकेबल है ना? सो फी रेमिशन एप्लीकेशन क्या नोटिस है? सो देखो, द इनकम सर्टिफिकेट शुड सर्टिफाई द फैमिली इनकम, नॉट द इनकम ऑफ द बियरर, है ना? फैमिली इनकम होना चाहिए। ओके ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट जो अप्लाई करती है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिषेक झा, ठीक है? और इनका देखिए यहाँ पे पूरा परिवार का कुल वार्षिक आय लिखा हुआ है ना? परिवार यानी फैमिली का, पूरा पूरा फैमिली का लिखा हुआ है, फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, दैट इज फॉर 97,000, तो आपको फुल रेमिशन मिलेगा। ये देखिए यूपी का, ठीक है? तो यूपी में भी जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें भी देखिए यहाँ पे है, कहाँ गया? देखिए यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कार्तिक महेश्वरी पुत्र, ठीक है, इन सब का नाम है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश निवासी का वर्तमान जो देखिए यहाँ पे परिवार की समस्त स्रोतों से मासिक आय अंकों में इतनी है ना? सो यहाँ पे आपका जो फी रेमिशन है वो आराम से हो सकता है। तो इनका देखिए पूरा परिवार का 40,233 मासिक आय है, तो साल का इसका हो गया 4,28,000, यानी इसको 2/3 रेमिशन मिल जाएगा, ठीक है? दैट्स ऑल। सो दिक्कत आती है झारखंड का वाला में, ठीक है? तो यहाँ जितने भी रेमिशन नहीं हुए थे ये झारखंड के स्टूडेंट्स हैं बेचारे,
हाँ बाद में मिल गया था, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह का फॉर्मेट बनाना होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट आखिर झारखंड में बनता कैसे है, ठीक है। देखिए यूपी बिहार एंड अदर स्टेट्स का तो सिंपल है, उनका फैमिली इनकम बनता है तो उनको दिक्कत होगा नहीं। तो झारखंड का थोड़ा सा एम्फेसाइज यहाँ पे किए हैं सो दैट कि झारखंड के स्टूडेंट्स को भी खासकर एनआईटी जमशेदपुर में फ्री एडमिशन मिल जाए। और यदि आईआईटीज में भी ऐसी डिमांड की जाती है, ठीक है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट अदर एनआईटीज और आईआईटीज में भी यदि ये इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड बियरर, तो फिर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो देखिए इसमें क्या है कि दिस इज टू सेटिस्फाई दैट रवि मंडल यानी मेरा नाम है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि टोटल एनुअल इनकम ऑफ द बियरर, मतलब मेरा एनुअल इनकम इतना है, नॉट इट्स डजंट टेलिंग अबाउट माय फैमिली इनकम, ओके। सो ये मैंने कुछ किया था बट इट डजंट मैटर, हमको लगा था यहाँ पे फैमिली वर्ड यूज कर देंगे तो फिर एमिशन हो जाएगा, बट कॉलेज ने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीज पढ़ो लास्ट लाइन, द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम जॉब एग्रीकल्चर बिजनेस फार्मिंग अदर्स ऑफ द बियरर इज 95,000, ओके। सो यहाँ पे कॉलेज को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अदर्स मतलब फैमिली भी होता है, फैमिली भी आ सकता है, तो कौन समझाए, छोड़ो, ठीक है। तो दिस इज द सर्टिफिकेट जो कि आपको मिलेगा नहीं। सो एक फॉर्मेट आप ही के सीनियर्स यानी एनआईटी जमशेदपुर के 2020 बैच के स्टूडेंट्स ने ये फॉर्मेट बनाया है सो दैट कि परमिशन मिल जाए। तो ये है फॉर्मेट, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट, ओके। व्हाट यू हैव टू डू, ये फॉर्मेट आपको ऑफलाइन बनवाना पड़ेगा, यानी सबसे पहले आप ये सर्टिफिकेट बनवाइएगा ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद इस सर्टिफिकेट को आप लेके जाइएगा सीईओ के पास और सीईओ को बोलिएगा इस फॉर्मेट में फिलअप करके यहाँ पे मोहर यानी साइन करे और मोहर लगा दे, ठीक है। तो फिलअप कैसे करें, पत्रांक में आपको यही चीज लिखना है, ये जो आपका नंबर है ना JIC 2021, ये चीज इस नंबर को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। दिनांक डाल दीजिएगा, ठीक है, जिस डेट को साइन करवाइएगा। प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि मंडल, ओके, ठीक है। और पिता, ठीक है, तो माय फादर्स नेम्स, ओके, एंड देन माय मदर्स नेम and gram is my, okay, let's leave it. Now post office, leave it, थाना, जिला, ये बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। सो आई एम फ्रॉम धनबाद, जो भी धनबाद के हैं, अच्छे। वार्षिक आय, ठीक है। तो अब देखिए प्रमाणित किया जाता है कि रवि मंडल पिता ये, माता ये, ग्राम यहाँ, पोस्ट ऑफिस यहाँ, थाना, जिला, राज्य एवं उनके परिवार की कुल वार्षिक आय, अब ये मान्य हो जाएगा। वो कितना है, तो सारा फिलअप करके कुल आय आपको वो भरना है जो आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि सीईओ जो साइन करेगा वो इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे करेगा कि आपका, क्योंकि सीईओ यहाँ समझता है कि अदर्स मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉलेज नहीं समझता है। तो ये 95,000 है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे फिलअप करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 जगहों में, ठीक है, कि 95,000 टोटल हो जाए, है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपका इनकम कितना का बना हुआ है। और दिनांक यहाँ पे डाल दीजिएगा, पदाधिकारी का हस्ताक्षर और यहाँ पे सीईओ साइन करेगा, सीईओ सिग्नेचर एंड स्टैम्प, ठीक है। देखिए जिन बच्चों को इतना झमेला नहीं करना है, ऑफलाइन नहीं जाना है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फैमिली इनकम मतलब अच्छा होता है, ठीक है, बट वो 1 लाख से नीचे बनवाना चाहते हैं, बट झारखंड में बनेगा नहीं। तो उस बेसिस पे यदि आपको इतना झमेला नहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, चुपचाप ये सर्टिफिकेट जमा कीजिए, मतलब चुपचाप मम्मी, मदर एंड फादर का अलग से सर्टिफिकेट्स बनाइए और जमा करके 40,000 रुपीज ले लिए। मतलब इतना झमेला कीजिएगा तब जाके आपको 22,000 रुपीज और मिलेगा, ठीक है।
अदरवाइज आपको 40,000 मिलेगा यदि मदर फादर का देते हैं। अब बात करते हैं कि उन बच्चों का जिनका मदर फादर नहीं है, ठीक है। यदि आपकी मदर नहीं है, ठीक है, आई एम सॉरी टू से बट बताना जरूरी है, ठीक है। यदि मदर आपकी नहीं है तो उस केस में आपको अपना मदर का डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एंड फादर का इनकम सर्टिफिकेट आईसी। सिमिलरली यदि किन्हीं के फादर नहीं है, ठीक है, फादर यदि नहीं है तो उस केस में उन्हें डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पापा का और मदर का इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि उन्हें इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनाइए और फिर एडमिशन लीजिए मम्मी का टीसी देके, और यदि पापा नहीं है तो पापा का टीसी जमा कीजिए और मम्मी का चुपचाप इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, ऑनलाइन बनेगा और उसको जमा कर दीजिए, आपको फ्री एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये था फुल प्रोसीड्योर कि कैसे किया जाता है, कैसे आप फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं झारखंड में, है ना। तो वो लोग मानते नहीं है, मतलब बहुत जगह सीओ मानते नहीं है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म, हम सारा पीडीएफ वगैरह का लिंक ड्राइव में अपलोड करके प्रोवाइड कर देंगे इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख लीजिएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म वो देखना चाहते हैं सीओ कभी कभी कि सही में ये डिमांड किया जा रहा है क्या, तो आप ये चीज़ दिखा सकते हैं कि हाँ हम लोग के कॉलेज यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि बीआरआर का नहीं फैमिली इनकम चाहिए, फॉर्मेट आप दिखा सकते हैं। तो सीओ बहुत अच्छे होते हैं उन लोग ऑफिसर्स, वो मान जाते हैं, फिर आपको फिर एडमिशन कर देते हैं, ठीक है। और बात करते हैं जिनका मदर एंड फादर, ठीक है, दोनों नहीं है, तो फिर इस केस में आपको किसी का नहीं देना पड़ता है, ठीक है। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट दे दीजिए बना के और अपने मम्मी पापा दोनों का डेथ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनकम सर्टिफिकेट बन गया, अब क्या है, फादर्स ऑक्यूपेशन, तो पापा कुछ करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसी तरह मदर्स ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ फादर मदर और पर्सन गार्जियन यदि है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लिखना है, ठीक है। यदि पेरेंट्स देखें यहाँ पे लिखा है पेरेंट्स नॉट अलाइव, लीगल डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन गार्जियन विद द स्टूडेंट शुड बी इनक्लोज्ड, सो ठीक है, देख लीजिएगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड बैंक डिटेल्स, पैसा 62,000 जो वापस मिलेगा वो बैंक खाता में मिलेगा, तो उसका डिटेल अच्छे से भरिएगा आप चाहे तो मेरा भर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट नंबर बता देते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी सिग्नेचर ऑफ द फादर एंड मदर यहाँ पे करवा लीजिएगा या फिर गार्जियन जो भी हैं, और आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा विथ डेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात आता है कि देखिए क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी, वो भी लिखी हुई है कि फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सीओ से साइन होना चाहिए, और पेरेंट्स का पैन देना पड़ेगा, ठीक है, और यदि 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आईटी रिटर्न भी देना पड़ता है, ठीक है। आईटी रिटर्न एप्लीकेबल ओनली इफ 1.2 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है। आधार का जेरॉक्स देना पड़ेगा और साथ ही साथ एक एफिडेविट बनाना पड़ता है कोर्ट से 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पे, ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपीज़ का, ध्यान दीजिएगा। 50 का भी मिलता है, 200 का भी मिलता है, लेकिन आपको 100 वाला लेना है, और उस पर एफिडेविट बनाइएगा और एफिडेविट में कुछ ये चीज़ें लिखी हुई होंगी, ठीक है, पूरा। तो यहाँ पे जैसे वी से स्टार्ट है तो वो लोग जो टाइप राइटर होते हैं वो जानते हैं क्या लिखना होता है, तो यहाँ पे आपका रहेगा कि मतलब this certificate is Ravi Mandal, like in my parents name, and then written that we hereby mean I and my parents both are declaring this, okay, so that should be written कि what does mean by we, so you have to mention, तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि we का मतलब क्या है सबसे पहले, ठीक है, तो वो टाइप राइटर को आपको बता देना है एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। सो एफिडेविट शुड बी साइंड बाय द स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, तो एफिडेविट में नीचे आप अपना और पेरेंट्स का साइन, ठीक है, एंड ये ऑफिस यूज के लिए है तो आपका काम का है नहीं। तो आप पूरा प्रोसीड्यूर समझ गए कि कैसे आपको फ्री एडमिशन मिलता है और कैसे क्या करना है, ठीक है। आई होप यू गॉट हाउ टू गेट फ्री एडमिशन, कैसे ले सकते हैं, ठीक है, और क्या करना है वो मुझे जानने की जरूरत नहीं है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है। वैसे मैं रेगुलर तो वीडियोस डालता नहीं हूँ, बट यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक्स करेंगे तो फिर हो सकता है मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो लाइक कर दो ड्यूड। ओके, हैव अ नाइस डे एंड अगेन कांग्रेचुलेशन। बाय बाय, फिर मिलते हैं।